السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ کانگریس پارٹی نے اقتدار ملنے پر کسانوں کے 2 لاکھ روپے تک کے قرض معاف کرنے اور دھرانی کی جگہ بھگتا اسکیم نافذ کرنے کا یقین دلایا۔ BRS سربراہ و چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے کانگریس پر تلنگانہ کے عوام کو 58 سالوں سے ہراساں کرنے کا الزام لگایا۔ BJP کے ریاستی انچارج پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ دھرانی کا گھوٹالہ کالیشورم سے بھی بڑا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ صرف ایک خاندان کے لیے نہیں بلکہ ریاست کے عوام کے مطابق علیحدہ ریاست تشکیل دی گئی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے نے تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کا انتخابی منشور ابھیا ہستم جاری کیا۔ اس منشور میں پہلے سے اعلان کردہ 6 ضمانتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ منشور میں کہا گیا کہ کانگریس پارٹی تلنگانہ عوام کی امنگوں اور خواہشوں کے مطابق جمہوری حکمرانی بحال کرنے کی عہد کی پابند ہے۔ کانگریس نے اپنے انتخابی منشور میں کسانوں کی 2 لاکھ روپے تک کے قرض معاف کرنے، 3 لاکھ روپے تک بلا سودی فصل قرضے، تمام بڑی فصلوں کے لیے جامع فصل انشورنس اسکیم، اساتذہ کی مخلوعہ جائیدادوں کو DSC کے ذریعے 6 مہینے کے اندر پور کرنے، 1000 کروڑ روپے کے سرمایہ سے رورل یوتھ فائنانشل کارپوریشن قائم کرنے کا یقین دلایا گیا۔ پارٹی نے تمام سرکاری ملازمین اور وظیفہ یابوں کو واجب الادا بقایا جات ادا کرنے اور قدیم پنشن اسکیم دوبارہ متعارف کرانے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ منشور میں کہا گیا کہ ہر آٹو رکشہ ڈرائیور کو سالانہ 12,000 روپے کی مالی امداد دی جائے گی اور آنگن واڑی اساتذہ کی تنخواہ بڑھا کر 18,000 روپے کی جائے گی۔ کانگریس نے تلنگانہ جہدکاروں کو 250 گز زمین اور اعزازیہ بھی دینے کا وعدہ کیا۔ BRS سربراہ و چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے کانگریس پر تلنگانہ کے عوام کو گزشتہ 58 سالوں سے ہراساں کرنے کا الزام لگایا۔ کریم نگر میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے KCR نے الزام لگایا کہ کانگریس کے دور حکومت میں برقی، پینے کے پانی اور آبپاشی کے مسائل تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ امیدوار کو دیکھتے ہوئے اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔ بعد میں چوپا ڈنڈی حلقے کے مدھورا نگر میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ BRS کا قیام تلنگانہ کے لیے ہی ہوا ہے۔ BJP راجیہ سبھا کے رکن ڈاکٹر لکشمن نے ضمانتوں کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے کا کانگریس پر الزام لگایا۔ حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لکشمن نے کہا کہ BRS اور کانگریس چور ہیں اور ان کی MIM سے ملی بھگت ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP پسماندہ طبقات کی مردم شماری کی مخالف نہیں ہے لیکن اس میں تکنیکی مسائل ہیں۔ لکشمن نے واضح کیا کہ BJP کے کئی CM امیدوار پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اقتدار ملنے پر BC چہرے کو ہی CM بنایا جائے گا۔ کانگریس کے ریاستی صدر ریونت ریڈی نے تلنگانہ اسٹیٹ بایوگرافی جاری کی۔ اس ڈاکیومنٹری میں ریاست میں گزشتہ 10 سالوں کے دوران کے حالات کو دکھایا گیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اس ڈاکیومنٹری میں کسانوں، نوجوانوں، خواتین کے غصے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے بچے کو یہ ڈاکیومنٹری دیکھنا چاہیے، اس لیے اس کا نام تلنگانہ بایوگرافی رکھا گیا ہے۔ چلوکا ویہان ریڈی، چلوکا ایانش اور بی کشور ریڈی نے اس ڈاکیومنٹری کو پروڈیوس کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جانکاری دی ہے کہ اسمبلی انتخابات میں گھروں سے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے 28,097 رائے دہندے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 80 سال سے زائد عمر کے بزرگ شہریوں، صحافیوں، 40% سے زیادہ معذورین کو گھر سے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق گھر سے ووٹ ڈالنے کے لیے 44,000 درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جس میں سے 28,057 کو اجازت دی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 26 نومبر کو آکاش وانی پر نشر ہونے والے پروگرام من کی بات کے لیے شہریوں سے تجاویز طلب کی ہیں۔ وزیر اعظم نے اس مہینے کے پروگرام کے لیے زیادہ تعداد میں تجاویز ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر مودی نے لوگوں پر زور دیا کہ نامو اور MyGov ایپ پر اپنی تجاویز بھیجیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام میں ایسے ہی لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں تذکرہ کیا جائے گا جس سے دوسروں کو تحریک ملتی ہو۔ کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے نے کہا کہ کانگریس پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد پہلے دن ہی کابینہ کا اجلاس منعقد کرے گی اور 6 ضمانتوں کو نافذ کرنے کے تعلق سے فیصلہ کرے گی۔ کھڑگے نے کہا کہ سونیا گاندھی نے علیحدہ ریاست کی تشکیل میں اہم رول ادا کیا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے مبینہ طور پر زیادہ تر وقت فارم ہاؤس پر گزارنے کا حوالہ دیتے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ KCR کو وہیں پر بند رکھا جائے۔ کھڑگے نے کہا کہ لوگ KCR کو پھر دوبارہ
चीफ मिनिस्टर के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं। बीजेपी की रियासती इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि धरानी का घोटाला कालेश्वरम से भी बड़ा घोटाला है। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि धरानी की वजह से तेलंगाना के लाखों किसान अपनी ज़मीन से महरूम हुए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने धरानी के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स तब्दील किए और बेनामी व गैर कानूनी अफराद को इसमें पट्टेदारों की जगह शामिल कर दिया गया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने इस मरतबा करीमनगर हल्के से कामयाब होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इससे कबल इन्हें 2 मरतबा शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बंडी संजय का मुकाबला तेलंगाना पसमानदा तबकात के वजीर जी कमलाकर से है, जिन्होंने साल 2014 और 2018 के असम्बली इंतखाबात में इन्हें शिकस्त दी थी। बंडी संजय अपने हिंदुत्व नजरियात से जाने जाते हैं, जबकि कमलाकर अपने हल्के के मारूफ लीडर हैं। कांग्रेस ने बोमाकल सर्कल के सरपंच पी श्रीनिवास को यहां से टिकट दिया है। तीनों उम्मीदवारों का ताल्लुक पसमानदा ज़ात मनोरू कापू से है। करीमनगर हल्के में 3,42,014 राय दहिंदे हैं, जिनमें से 1,71,254 मर्द और 1,70,615 खातून राय दहिंदे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने आज कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना सिर्फ खानदान के लिए नहीं बल्कि रियासत के अवाम की उमंगों के मुताबिक तश्कील दी गई है। राहुल गांधी ने वरंगल जिले के नरसमपेट में कांग्रेस की विजय भेरी मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ रुपए की बदउनवानी हुई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि धरानी पोर्टल के जरिए हज़ारों एकड़ अराज़ी पर कब्जा किया गया। राहुल गांधी ने यकीन दिलाया कि कांग्रेस को इक़्तिदार मिलने पर ख़वातीन को RTC में मुफ्त सफ़र करने की सहूलत फराहम की जाएगी और तालिबात को स्कूटीज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रैतु भरोसे के तहत किसानों को 15,000 रुपये और लगानदार किसानों को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बनने पर गैस सिलेंडर 500 रुपये और लड़कियों की शादी के लिए सोने के साथ 1 लाख रुपये शादी के लिए दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने BJP, BRS और MIM को एक ही मकसद के तहत काम करने का इल्ज़ाम लगाया। मुसलमानों से रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की माजरत खाई। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अपने इस बयान की वजाहत की। BRS उम्मीदवार व रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार की इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज खम्मम का दौरा किया। इस मौके पर BRS दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महमूद अली ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले में किए गए इनके तबसरे पर शर्मिंदा हूँ और तमाम उम्मत मुस्लिमा से इस सिलसिले में माफ़ी का तलबगार हूँ। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और औलिया अल्लाह व उलमा इकराम की क़दरदानी एहतराम करता हूँ। अब जो गुज़िश्ता 2 दिन से महमूद अली साहब के बयान को लेकर बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया गया। उसके बाद कोई लीडर पैदा हुआ है तो हमारा तिरंगा का दूसरा महात्मा 1954 में केसीआर साहब पैदा हुए। तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जिस तरीके से उर्दू मीडिया फेडरेशन की जानिब से जो खास मुलाकात का प्रोग्राम महमूद अली साहब के साथ किया गया था, लेकिन अब जो गुज़िश्ता 2 दिन से महमूद अली साहब के बयान को लेकर बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया गया और बड़ी तनाज़े का मसला ये है कि खुलफ़ाए राशिदीन में 4 अरबाइन जो है उसमें खलीफा दुवम हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मामले को लेकर एक उनकी बात को क्या कट करके पेश किया गया, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, या फिर हकीकत में वज़ारत दाखिला हमारे मोहम्मद महमूद अली साहब जो हमारे साथ मौजूद है उनकी ज़बान से या वाक़ई में उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में कुछ गुस्ताखाना अल्फाज निकले। इन तमाम हालात को जानने के लिए आज फिर वज़ीर दाखिला के साथ हम यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ही कठिन मसला है। क्योंकि इस्लाम के अंदर जब भी मुखालिफत में आवाज़ उठती है तो सब जानते हैं कि शहर के हालात क्या हो जाते हैं, लेकिन इस तनाज़े को ठंडा करने के लिए वज़ारत दाखिला का वज़ाहत बयान ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपका फिर से खैर मकदम करूँगा कि जिस तरीके से महमूद अली साहब आपके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि आपने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की है, उनको आपने KCR के ताबे की है, ये बड़ी बात नौज़ बिल्लाह। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे वज़ाहत बयान में आप? अब्दुल्ला भाई, ये कभी सोच भी सकते हैं? कोई भी बात बताना चाहता हूँ जी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने तो हजारों की गर्दनें भी शहीद कर दी जाए तो मामूली बात है। जी। हम बड़ा एहतराम करते हैं, हम मुसलमान हैं। बराबर। हम जो है महात्मा गांधी से कंपेयर किया गया, क्योंकि हम हमेशा KCR साहब को दूसरा गांधी करते हैं। जी। हमने खुद कहा कि हमारे तेलंगाना के दूसरे गांधी जी। KCR साहब जन्म के बारे में कहे। आप देख लीजिए, आप तफसील से हमारे बयान को दीजिए। एक चैनल वाले ने उसे, जो हमारे अपोजिट में काम कर रहा है, उसे तोड़ मोड़ के पेश किया गया। जी। और मैं कल खुद बहुत बड़े बड़े उलमाओं के साथ बैठा था, मुफ्तियों के साथ बैठा था खम्मम में। जी। पूरा पूरा उस पर डिस्कस भी किया और कहा कि वो तोड़ मोड़ के पेश करने के बाद भी किसी को तकलीफ है तो मैं दिल से माफी चाहता हूँ, कहा। और मैं तो बहुत एहतराम करने वाला आदमी हूँ और उलमा
بہت علماء کو اور مشائخین حضرات کو، اور خاص طور ہمارے خلفائے راشدین تو بہت بڑے ہیں، وہ کدھر سے کدھر ملا سکتے ہیں. آپ دیکھیں، میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس طرح سے سوچ رہے ہیں، وہ بہت، ہم تو خواب میں کیا سوچ بھی نہیں سکتے ایسی بات. آپ کی بات کو لے کر مطلب تمام مسلمانوں میں برہمی کی لہر پھیلی ہوئی ہے کہ حقیقت میں آپ کی جو ویڈیو کو توڑ مڑو کے پیش کیا گیا اس کے تو ہم وضاحت کریں گے، لیکن آپ ان تمام لوگوں کو جو برہمی کی حالت میں ہیں، آپ کے خلاف بہت سارے نازیبہ الفاظوں کا بھی استعمال ہو رہا ہے، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ سوچیے، جی ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی بہت حلال روزی کھاتے ہیں، بہت پکے مسلمان ہیں، بہت ایمان پہ چلنے والے مسلمان ہیں. ہم کسی طرح کسی کونے میں بھی اس بات نہیں سوچ سکتے. جی ہماری گردن بھی کٹ جائے گی تو ہم نہیں سوچ سکتے خلفائے راشدین کا جو مقام ہوتا ہے. جی میں نے کہا کہ مہاتما گاندھی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کیسا ہندوستان دیکھنا چاہتے ہیں. جی ہم نے سنا ہے چونکہ مہاتما گاندھی اسلامی لیڈر سے بہت اچھا واقف تھے. جی انہوں نے کہا میں بہت سے لوگوں کے بارے میں، حکمرانوں کے بارے میں پڑھا ہوں، اور سب سے اچھا رول رہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانے کا رول رہا ہے. اسی طرح کا رول جو ہے ہم دیکھنا چاہتا ہوں، اس طرح امن، اس طرح ترقی چاہتا ہوں. اور نعوذ باللہ میں کس طرح بھی بول ہی نہیں سکتا، اور اسے توڑ موڑ کے پیش کیا گیا. اگر کسی کو میری وجہ سے، اس بیان بازی کی وجہ سے کوئی تکلیف ہے تو میں کل بھی کہا ہوں کہ معافی چاہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ معافی چاہتا ہوں. چلیے لوگ جو ہے بہت جلد بازی میں کچھ لوگ جو ہے غلط طریقے سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی اور میں جو بیان دیا تھا آپ تفصیل سے دیکھ، میں کہا گاندھی جی کے بعد تلنگانہ کا دوسرا مہاتما پیدا ہوا تو KCR صاحب. جی تو یعنی وضاحتی طور پر یہ واضح ہے کہ محمود علی صاحب کا جو بیان تھا کہ مہاتما سے کسی نے سوال کیا کہ کس طریقے کا آپ رول چاہتے ہیں، تو انہوں نے عمر فاروق علیہ السلام کے دور کی بات کہی، اور یہاں پر ان کی بات کو کس طریقے سے توڑ کر پیش کیا گیا وہ ہم آپ کو برابر ہمارے اپنے تمام میڈیا چینلز کے ذریعے بتائیں گے. لیکن میں ان تمام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ مفاد پرستی، چاہے آپ کے اپنے محاسبے. فلمی اداکارہ وجے شانتی کانگریس میں شامل ہو گئیں. فلمی اداکارہ سے سیاستداں بننے والی وجے شانتی کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئی. کافی عرصے سے سرگرم سیاست سے دور تیلگو فلموں کے نامور اداکارہ وجے شانتی گزشتہ ہفتے BJP سے مستعفی ہو گئی تھی، اور آج انہوں نے کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے سے ملاقات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئی. گزشتہ اسمبلی انتخابات میں وجے شانتی کانگریس پارٹی میں تھی، لیکن کانگریس کی شکست کے بعد BJP میں چلی گئی اور اب دوبارہ کانگریس میں شامل ہو گئی. تلنگانہ کی تشکیل سے قبل بھی وہ TRS پارٹی میں لوک سبھا کی رکن تھی. صدر TRS چندر شیکھر راؤ سے اختلافات کے بعد کانگریس میں شامل ہوئی تھی. میرچل ضلع کیسرا منڈل میں وزیر ملا ریڈی کی مہم کے دوران خواتین کارکنوں میں معمر افراد کو میٹنگ میں بلایا. ان میں سے کچھ کو پیسے نہیں دیے، جس پر کچھ دیر کے لیے افراتفری پھیل گئی. کیسرا منڈل میں وزیر ملا ریڈی کی مہم کے دوران خواتین کارکنوں میں دریں معمر بزرگ خواتین شکایت کر رہی ہیں کہ صرف 20 تا 30 لوگوں کو پیسے دیے گئے لیکن چند کو نہیں ملے، جس کی وجہ سے تھوڑی افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا اور شرکاء میں ناراضگی دیکھی گئی. రాహుల్ గాంధీ ఢిల్లీకి వచ్చి చెప్పారు
ఇంటికి వచ్చినావు అరే ఎవరైనా రాహుల్ గాంధీ ప్రచారం मुशीराबाद में 4 साल बेटी को फांसी पर लटकाने के बाद जोड़े की खुदकशी। शहर हैदराबाद में दिल दहला देने वाले वाकये में एक जोड़े ने खुदकशी करने से कबल 4 साल बेटी को फांसी पर लटका दिया। शहर के मुशीराबाद इलाके में यह वाकया पेश आया। साई कृष्णा और चित्रकला गंगापुत्रा कॉलोनी में किराए के मकान में फांसी लेकर खुदकशी करने से कबल 4 साल तेजस्वी को फांसी दे दी। ये वाकया जुमा के रोज़ इस वक्त मंजर आम पर आया जब पड़ोसियों ने सुबह में दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को अलर्ट कर दिया। दरवाज़ा तोड़कर पुलिस जब अंदर दाखिल हुई तो तीनों को लटकते हुए पाया। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े ने दीवारों पर इंतहाई इक़दाम की वजूहात तहरीर की। चित्रकला एक खांगी फर्म में काम करती थी, ताहम फंड में तगल्लुब के इल्ज़ाम में से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इसका इल्ज़ाम था कि अरबाब मजाज से नुमाइंदगी के बावजूद मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई। पुलिस ने शुबा ज़ाहिर किया कि जोड़े ने जुमेरात के रोज़ इंतहाई कदम उठाया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाशों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। गज़ा पर जारियत के माशी असरात। इजरायली करेंसी शिकल 2012 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। इजरायली करेंसी शिकल 2012 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में शिकल में 0.7% की कमी हो चुकी है। तफसीलात के मुताबिक इसराइल की गज़ा पर जारियत माशी असरात सामने आना शुरू हो गई। इजरायली करेंसी शिकल 2012 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। ब्लूमबर्ग ने बताया कि अमरीकी डॉलर के मुकाबले में शिकल में 0.7% कमी हो चुकी है। इजराइल के बॉन्ड्स और स्टॉक्स में भी कमी रिकॉर्ड की गई। इजरायली ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में $7 अरब की कमी हुई। सितंबर में 1.5% पर रहने वाला बजट खसारा अक्टूबर में GDP का 2.6% हो चुका है। 2022 में सरप्लस रहने वाला बजट जंगी अखराजात के बाद 2024 में 3.5% खसारे तक पहुँच सकता है। 2022 में माशी शरह नमो जो GDP का 6.5% थी, इस वक्त 1.5% पर है और आइंदा साल 0.5% तक पहुंच सकती है। मरकज़ी बैंक का कहना है कि इजराइल को यौमिया $26 करोड़ का नुकसान हो रहा है और इन हमलों की वजह से इजरायली मईशत को $50 अरब का नुकसान हो सकता है। मूडीज़ का कहना था कि इजराइल में महंगाई 6.8% पर जा सकती है। यमन में हिंदुस्तानी नर्स की सज़ाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद। वालिदा खून बहा देने को तैयार। यमन की सुप्रीम कोर्ट ने रियासत केरला से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदुस्तानी नर्स निमिशा प्रिया की सज़ाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। प्रिया यमनी शहरी के कत्ल के इल्ज़ाम में 2017 से वहाँ कैद है। प्रिया को तलाल अब्दुल महदी के कब्ज़े से पासपोर्ट वापस लेने की कोशिश में इसे मंशियात का इंजेक्शन देकर कत्ल करने का मुजरिम करार दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमेरात को मरकज़ पर जोर दिया कि वो प्रिया की मां की यमन जाने की दरख्वास्त पर 1 हफ्ते के अंदर फैसला करे। प्रिया की मां ने इस साल के शुरू में दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू किया था। उन्होंने अरब मुल्क में जारी खाना जंगी की वजह से 2017 से हिंदुस्तानी शहरियों पर सफरी पाबंदी के बावजूद यमन जाने की इजाज़त मांगी है। प्रिया की वालदा मुबैना तौर पर अपनी बेटी की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए ब्लड मनी यानी खून बहा या मुआवजा देने को तैयार है। इस सिलसिले में तलाल के ख़ानदान से मुज़ाकरात के लिए यमन जाना चाहती है। दरख्वास्त गुजार ने, जिसकी नुमाइंदगी एडवोकेट सुभाष चंद्रन के आर ने की, ने क़ब्ल अज़ें अदालत से दरख्वास्त की थी कि इसकी बेटी को बचाने का वाहिद रास्ता मुतासरा ख़ानदान के साथ बराह रास्त बातचीत है। ऐसे अमल के लिए प्रिया की वालदा का यमन में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। ताहम हिंदुस्तानी शहरियों के लिए मौजूदा सफरी पाबंदी इस सिमत में एक रुकावट है। इजरायली हमले में फ़लस्तीनी फ्रीडम मूवमेंट के बानी और सेक्रेटरी जनरल खालिद अबू हिलाल शहीद हो गए। फ़लस्तीनी फ्रीडम मूवमेंट के बानी और सेक्रेटरी जनरल खालिद अबू हिलाल इजरायली हमले के नतीजे में शहीद हो गए। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक गज़ा के इलाके शेख रिजवान में इजरायली हमले के नतीजे में खालिद अबू हिलाल शहीद हो गए। गज़ा में इजरायली जारियत 7 अक्टूबर से जारी है, जिसमें अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई है। गज़ा में इंडोनेशिया अस्पताल मुकम्मल गैर फ़ाल, मरीज़ों का इलाज नामुमकिन हो गया है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इजरायली हमलों में 11,470 शहीद अफराद में 4,707 बच्चे, 3,155 ख़वातीन और 668 बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। वज़ारत सेहत का कहना था कि गज़ा की 58% से ज़ायद लगभग 2
76,000 रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी है। इसी तरह इसराइल की जानिब से 60 से ज़ायद एम्बुलेंस पर हमले किए गए, जिनमें से 55 एम्बुलेंस तबाह हो चुकी है। वजारत सेहत का बताना है कि अल-शिफा अस्पताल में 11 नवंबर से अब तक 9 मरीजों समेत 40 मरीज़ शहीद हो चुके हैं। भदादरी कोत्तागुड़म जिले के मंगूल में राहुल गांधी का रोड शो में अवामी सरों का सैलाब देखने में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर तेलंगाना को लूट रहे हैं। तेलंगाना रियासत को चीफ मिनिस्टर ने कर्ज के दलदल में ढकेल दिया। बीआरएस की हुकूमत मुकम्मल बदउनवानी में मुलविस है। मेरा रिश्ता तेलंगाना से सियासी रिश्ता नहीं बल्कि तेलंगाना से मेरा खूनी रिश्ता है। आज भदादरी कोत्तागुड़म जिले के पनपाक असम्बली हल्के के मंगोर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से रोड शो मुनाकिद किया गया। रोड शो की क़ियादत साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट खम्मम, तेलंगाना कांग्रेस इंतखाबी मुहिम के नायब चेयरमैन व उम्मीदवार हल्के असम्बली पालेर कांग्रेस पार्टी पी श्रीनिवास रेड्डी ने की। राहुल गांधी के रोड शो में इंसानी सरों का समंदर देखा गया। रोड शो से एआईसीसी के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर और बीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रियासत तेलंगाना को लूट रहे हैं और बीआरएस हुकूमत को बदउनवान हुकूमत करार देते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत को केसीआर ने 4 लाख करोड़ मखरूज कर दिया और तेलंगाना को कर्ज के दलदल में ढकेल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा रिश्ता तेलंगाना से सियासी रिश्ता नहीं बल्कि खूनी रिश्ता है। आज तेलंगाना रियासत की आवाम बीआरएस पार्टी की पॉलिसियों की वजह से बदजन हो चुकी। राहुल गांधी ने अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के तमाम वज़रा तेलंगाना के अवाम का माल लूट कर हज़ारों करोड़ों रुपये अपने तिजोरियों में भर लिए हैं। तेलंगाना के तमाम वज़रा को बदउनवान करार देते हुए केसीआर ने तमाम स्कीमात में बदउनवानी की है। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम मूड बना चुकी है कि 30 नवंबर को मुनाकिदा असम्बली इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर केसीआर को सियासी मंजर से रुखसत कर देंगे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से तेलंगाना के गरीब अवाम के लिए 6 ज़मानतों का जो ऐलान किया गया, इन ज़मानतों पर पूरे असर के साथ 100% अमल किया जाएगा। तेलंगाना अवाम का पैसा जिस तरीके से लूटा गया, इस पैसे को तेलंगाना के अवाम की जेब में कांग्रेस पार्टी वापस करेगी। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।